Hello students, welcome back. This is lecture 6 on article number 14, which is the last exercise of your chapter Newton's law of motion. In this article 14, we are going to discuss Newton's law of gravitational attraction. So in this article states that any two bodies, suppose you are having bodies of mass m1 and m2, then the force of attraction between these two bodies, let it be given by F. And the force of attraction जो होगा, it will be directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square I'm sorry, the square of the distance between them. It means it is proportional to m1 m2 upon r square, where r is the distance between the masses. तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगा देंगे और इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. So F becomes g m1 m2 upon r square. So g की वैल्यू अगर आप CGS सिस्टम में बात करें तो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब. आगे या आपको ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर आप इसकी बात करें MK सिस्टम यूनिट्स की तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11. This is the value. 6.67 into 10⁻⁻8 is the value in CGS system, minus 11 in MKS system. So gravitational force basically exists between any two bodies, every pair of body. So suppose one body is our Earth, whose mass is m, and the other body is whose mass is small m. So F is equal to gmm upon r square. And if the mass of the body which is on the earth is equal to 1, then this force of attraction is basically the acceleration due to gravity, and it becomes gm upon r square. And let the acceleration due to gravity on the surface of the earth is denoted by g0, and on the height h is represented by gh. Height h is basically the height from the surface of the earth. तो gh कितना बन जाएगा, gm अपॉन नीचे जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा r प्लस h स्क्वायर, क्योंकि r डिस्टेंस जो है वो है पार्टिकल का बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक, प्लस h जो एडिशनल हाइट है. इसमें से आप r कॉमन ले लो नीचे डिनोमिनेटर में से, तो जब r बाहर निकलेगा r स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बनेगा 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर. gm अपॉन r स्क्वायर ये न्यूमिनेटर में ले जाओ, -2 बाइनोमियल लगा दो. इसके बाद भी टर्म्स आएंगी बट आप उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज h जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, r बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली हायर पावर्स में वो नेग्लिजिबल टर्म्स बन जाएंगी. दे कैन बी निग्लेक्टेड वेरी इजीली. तो आप सिर्फ यहाँ तक लो 1 - 2h अपॉन r, निग्लेक्टिंग द हायर पावर्स, दैट इज h अपॉन r की पावर 2, और हायर पावर्स को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं. ये चीज़ है आपकी g0. सो बेसिकली यू कैन ईजिली सी कि अगर हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ी तो ये क्वांटिटी बढ़ गई, ये क्वांटिटी बढ़ गई, तो 1 में से बड़ी क्वांटिटी माइनस हुई, तो आपका जो GH है वो डिक्रीज हो जाएगा. मतलब जितनी ज़्यादा हाइट पे आप जाओगे उतना ही आपका G डिक्रीज होगा. और वेट ऑफ द बॉडी क्या होती है, mg. तो उस केस में अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो वेट भी क्या होगा, बॉडी का डिक्रीज होगा. मतलब हायर यू गो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस. The weight of the body decreases as the body is taken higher up the surface of the earth. Example number 1 is related to this one. It is given that an astronaut weighs 63 kilogram on the earth. How much will he weigh on the moon? तो अर्थ पे वेट है उसका, मास है 63 kilograms, and you have to find on the moon. Mass of the moon is given to be 1/80th of the mass of the earth. And radius of the moon is given to be 2/7th of the radius of the earth. It is given to you, mass of the moon and the radius of the moon. So मान लो कि आपके पास जो अर्थ है उसका रेडियस और उसका मास m मान लो, मास ऑफ अर्थ, and r is radius of earth.
सो गिवन है कि जो आपका मून का मास है, mass of moon, let it be small m, it is given to be 1/80th of mass of earth, and next radius of moon, it is 2/7 of the radius of earth. निकालना क्या है, आपने बताना है कि आदमी का कितना वेट होगा मून पर, कितना वेट करेगा वो मून पे. तो सबसे पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं मैन की विद अर्थ पे कितनी होगी, जी अभी डिस्कस करा है, m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो वेट कितना है उसका, mg. अगर मास उसका m है तो वेट कितना है उसका, mg. तो ये बन गया g. क्यों, ये फोर्स था आपका अट्रैक्शन, तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली द वेट ऑन द अर्थ, या कह सकते हो वेट ऑन द अर्थ ऑफ द मैन. इट इज इवेंचुअली द फोर्स विद विच द बॉडी ऑफ द मैन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. तो जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है वही उसका वेट होता है. तो फोर्स की जगह वेट डाल दिया, इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. एम और एम कैंसिल कर दो, तो जी इज इक्वल टू, ये वाले जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन एम. दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, वेयर स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. लेट जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून. Acceleration due to gravity on moon, and mass of the moon and earth of radius of moon you know already. So let us write weight is equal to g, same relation which you have written for the earth, mg weight, यहाँ पर weight बन जाएगा mg dash is equal to g into mass. Mass on of the earth is m, mass of the moon is m/80. Mass of the man is small m, which is same, upon r का square. Here is it is 2/7 r का square. m और m gets cancel out, so g dash is, you can solve it, 7 का square is 49, ऊपर चला जाएगा तो 49 m upon 80, और यहाँ पर 2 का square 4, that is 320. So g dash comes out to be 49 m upon 320 r square into g. ठीक है, तो इसमें आप g की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी निकाली हुई है. g की वैल्यू थी g r स्क्वायर अपॉन m. g r स्क्वायर अपॉन m, बस इसको सॉल्व कर लो, सारी वैल्यूज पुट कर दो. ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, ये बन गया 49 अपॉन 320 इंटू g की वैल्यू थी 9.8. सो बस आंसर निकाल लो, ये आ जाएगा आपका g डैश की वैल्यू. बेसिकली g डैश की वैल्यू निकल गई. आपको वेट निकालना है मून पर, वेट ऑन द मून इज mg डैश. मास तो सेम ही रहा 63, g डैश जो भी निकला होगा वो पुट करके वेट ऑन द मून आप निकाल लेना. दैट्स इट. आई थिंक द चैप्टर इज कंप्लीट. आई मीन नॉट थिंक बट चैप्टर इज कंप्लीट. एक बस आपका वो एटवुड मशीन का लेक्चर रह गया, सून बी अपलोडिंग इट. उतनी देर तक आप ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो, कोई भी डाउट्स है पूछ लो. And after that we'll be starting our next chapter, that is motion under variable acceleration. So that's it for today. I hope कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा. अगर कोई डाउट रहा है तो डेफिनेटली पूछ लेना कमेंट सेक्शन में. अपने रोल नंबर्स लिख देना जिन्होंने वीडियो देख ली है. टाइप योर रोल नंबर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. And that's it. I'll be noting down your roll numbers. Basically that will be your attendance. आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके अपने रोल नंबर को. और जिन बच्चों ने अभी तक फेसबुक वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाओ उनको, उनके ऐड करो फोन नंबर्स को. और जिनको ने अभी तक यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी शुरू की, अपने फ्रेंड्स को बताओ भी कि सोते मत रहो, पढ़ लो अब. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.